today we will start with magnetic vector potential. In the previous classes, we have talked about Ampere's law. Ampere's law is del cross B is equal to mu naught J vector, or in integral form it is B dot dl is equal to mu naught times the I enclosed by the path. This is integral form of Ampere's law, and using this integral form we can find the magnetic field for the symmetric configurations that we have already discussed, just like for infinite state wire or infinite sheet, for infinite solenoid, toroid. In all those symmetric configuration we can find the magnetic field, because in those cases we can take this B constant out of integral, and using this law we can find or calculate the magnetic field. So divergence of, in electric field, divergence of E is rho by epsilon naught and curl of E is 0. These things we had already studied in the electrostatics. Now in magnetic field, we find divergence of B is 0 and curl of B is, that is Ampere law, mu naught J. These four equations are Maxwell's equations of electricity and magnetism. Now, in electric fields, we have potential, scalar potential V. कैसे आया वो scalar potential? Because we know curl of E is 0 and also curl of gradient of a scalar, curl of gradient is 0. So it means E can be expressed as negative gradient of potential. ये आप सबको पता है, हम सब ने पढ़ रखा है कि E electric field can be expressed as negative gradient of potential, and V here is scalar potential. तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे पोटेंशियल को हमने डिफाइन किया, can there exist potential for magnetic field? The answer is yes. How? We know divergence of B is 0. And also we know, and or you can show that divergence of curl of a vector field, किसी वेक्टर फील्ड का कर्ल करेंगे और उसका डाइवर्जेंस, ये क्या होता है? 0. डाइवर्जेंस ऑफ B 0 है और डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड 0 होता है, ये हमने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा है. तो इट मींस B कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड एज अ कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, दैट इज A वेक्टर. ओके, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को भी किसी वेक्टर पोटेंशियल के टर्म में लिख सकते हैं. This A is known as magnetic vector potential. This is magnetic vector potential, vector field. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम स्केलर पोटेंशियल के टर्म में लिखते हैं, V के टर्म में, सिमिलरली magnetic field B, it can be written in terms of vector potential A vector. Now what is the physical interpretation of this vector potential? That we can see from the dimensions of A. We know B is equal to del cross A. So dimensions of A will be length into that of B. A के dimension क्या होंगे? Length के dimension into field के dimension. And we know that F is equal to Q V into B. तो यहाँ से B के dimension क्या आएंगे? F over Q into V. Q is charge, V is velocity, and we can substitute here. Instead of B, we can write F over QV. And L over V, length over velocity is time. So this will become F into T. Dimensions of Q into A are that of momentum. तो ये किसके वाले dimension आ गए? Momentum. How will you calculate this vector potential A? There are many ways, 2-3 ways to calculate the magnetic vector potential. First, you can compare the component of del cross A with that of magnetic field.
बिकॉज वी नो B इज डेल क्रॉस A. B वेक्टर क्या है? डेल क्रॉस A. डेल क्रॉस A को कैसे लिख सकते हैं हम? And the component of A say AX, AY and AZ. Here B vector can be written as BXI plus or BXX cap, BY and Z component is BZ. Here by comparing the components you can find the vector potential. If you have the value of magnetic field, then by comparing the components you can find the value of vector potential. Now second method is using Stokes theorem that we will discuss in detail. And third, if you are given the magnetic fields, then that is B, that from comparing or using Stokes theorem you can calculate the vector potential. Or in some cases we have some current distributions, and from those distributions we can find the vector potential. Now Stokes theorem का use करके कैसे हम find कर सकते हैं? Using Stokes theorem we can find a vector. Vector field को find कर सकते हैं. How? Suppose you have a path or loop. कोई आपके पास closed path है. Line integral इस path के around अगर लेना हो a vector का line integral along this path, that will be a dot dl. And using Stokes theorem, you know, line integral can be represented in terms of surface integral, that you can take del cross A into ds. S वेक्टर के जो ds एरिया कंपोनेंट है, इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम राइट हैंड रूल. अगर dl वेक्टर ऐसे जा रहा है, कर्ल ऑफ फिंगर इज गोइंग टू दिस, देन थंब ऑफ डायरेक्शन ऑफ थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस ds वेक्टर. एरिया वेक्टर की डायरेक्शन थंब की डायरेक्शन से आएगी, दैट इज राइट हैंड कन्वेंशन रूल. नाउ d वेक्टर ये हमें पता है, so it means line integral of A is equal to B dot ds, and magnetic field B dot ds means flux. This is flux passing through surface enclosed by surface area enclosed by the curve. This curve, ये जो कर्व जितना एरिया इनक्लोज कर रही है, इसमें से जो फ्लक्स पास होगी दैट विल बी B डॉट ds and that come out to be A डॉट dl, लाइन इंटेग्रल ऑफ A वेक्टर. सो अगर आपको फ्लक्स पता है, you can find the integral of dl, and then in those cases we can find A. So this, using Stokes theorem we can calculate vector potential A इस चीज का यूज करके. Now we will find that vector potential using the Stokes theorem. So dot dl is equal to flux, that is B dot ds. इसका यूज करके हम A वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे. किसके लिए? सोलेनॉइड के लिए. So take a solenoid. Solenoid में n number of n is the number of turns per unit length, okay, and suppose I is current through this solenoid, say it is in z direction. Let us take cylindrical symmetry. So we will consider if I is in z direction, I अगर z direction में है तो magnetic field will curl around it, and so it will be in phi direction. Magnitude of magnetic field due to solenoid is mu naught. Permeability, n is number of turn per unit length, and I is current passing through the solenoid. Now suppose r is the radius of the solenoid, capital R. The direct in vector notation, B vector can be written as mu naught n I. Say I is in z direction, so z cap. ये B vector हो गया, mu naught I n I z cap. L cross A is B vector. So A vector भी किस डायरेक्शन में होगा? फाई में.
तो ए वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, ए फाई और फाई कैप, मतलब ए वेक्टर का एस कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट जीरो होगा, सिर्फ फाई कंपोनेंट होगा। अब हमारा जो टारगेट है, हमें निकालना है ए वेक्टर। सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड के लिए हम लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर लिखते हैं, इट विल इक्वल टू फ्लक्स, ये हमें पता है, A dot dl is equal to flux. This comes from Stokes' theorem. ये चीज हमारे पास आ गई कि लाइन इंटेग्रल ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स। फ्लक्स मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। अब ए वेक्टर लिखना है तो उसके लिए इसके अराउंड एक लूप कंसीडर कर लेंगे, सोलेनॉइड के अराउंड ऑफ रेडियस आर रेडियस का एक लूप कंसीडर कर लिया, ठीक है। तो लाइन इंटेग्रल ऑफ ए इज बायसिमेट्री, ए इज यूनिफॉर्म, सो वी कैन टेक इट आउट ऑफ इंटेग्रल एंड इसका सिर्फ फाई कंपोनेंट होगा, ए विल बी इन द फाई डायरेक्शन एंड डीएल का जो इंटीग्रेशन रह जाएगा अंदर, फ्लक्स मीन्स बी डॉट डी एस एंड बी डॉट डी एस फ्लक्स इज बी डॉट डी एस, ठीक है, ये तो पता है फ्लक्स बी डॉट डी एस। अब बी का मैग्नीट्यूड कितना है, म्यू नॉट एन आई एंड इंटीग्रेशन ऑफ एरिया, टोटल जो एरिया आएगा, इफ आर इज द रेडियस ऑफ दिस सोलेनॉइड, कैपिटल आर इज द रेडियस, देन एरिया कितना आएगा टोटल, पाई आर स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो वेक्टर पोटेंशियल देख रहे हैं हम जिस लूप के अराउंड, जिस लूप पर, उस लूप का रेडियस आर है, ठीक है। तो डीएल का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सरकमफेरेंस ऑफ दैट लूप, दैट इज 2 पाई इंटू आर। ये स्मॉल आर जो है, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस लूप एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द सोलेनॉइड। पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास ए वेक्टर, ए का क्या आ गया वैल्यू, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r। इन वेक्टर नोटेशन ए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, अलोंग फाई कैप। ये जो पॉइंट है इनसाइड द सोलेनॉइड हो, इन दैट केस इफ यू हैव टू फाइंड ए वेक्टर इनसाइड द सोलेनॉइड, उस केस में हम इनसाइड एक लूप कंसीडर करेंगे, ए फाई 2 पाई इंटू आर सरकमफेरेंस, डीएल का इंटीग्रेशन, यहाँ पे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर। पहले हम एरिया पूरे सोलेनॉइड के ले रहे थे, ये पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ सोलेनॉइड, नाउ वो पॉइंट अंदर चला गया तो उस लूप का एरिया लेंगे, क्योंकि इनसाइड जितना एरिया है उतना ही लेंगे, अब पाई आर स्क्वायर। नाउ ए फाई कम आउट टू बी म्यू नॉट एन आई आर ओवर 2। अब आर से आर कैंसिल हो गया है, पाई कैंसिल, अब ये आ गया। सो ए वेक्टर इज म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर ओवर 2r, अगर r ग्रेटर देन कैपिटल R। अगर पॉइंट बाहर है सोलेनॉइड के, उस केस में सोलेनॉइड के बाहर वेक्टर पोटेंशियल की ये वैल्यू आ गई, इनसाइड द सोलेनॉइड क्या आ गया, म्यू नॉट एन आई ओवर r ओवर 2, दिस इज फॉर r लेस देन इक्वल टू कैपिटल R। तो ये वेक्टर पोटेंशियल हमने निकाल लिया यूजिंग स्टोक्स थ्योरम फॉर द सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r, करंट I। वेरीफाई करना है, तो हमें पता है कि सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, डेल क्रॉस ए लेके देख लो आप, डेल क्रॉस ए इस चीज का करोगे r ग्रेटर देन r, 0 आएगा। इसको सॉल्व करोगे z कंपोनेंट ऑफ डेल क्रॉस ए, इट कम्स आउट टू बी 0 एंड ये आएगा म्यू नॉट एन आई। फॉर r ग्रेटर देन r डेल क्रॉस ए 0 आएगा एंड इट विल बी म्यू नॉट आई एन आई, वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इट विल बी इन डायरेक्शन ऑफ z कैप फॉर r लेस देन इक्वल टू r। तो यहाँ से वेरीफाई भी हो जाएगा कि दिस वेक्टर जो हमने निकाला है दिस इज राइट। ओके, सिमिलरली यू कैन फाइंड द वेक्टर पोटेंशियल फॉर अ स्टेट कंडक्टर। सपोज देयर इज अ स्टेट वायर, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम इसके लिए क्या निकालेंगे, ए वेक्टर निकालेंगे। I is current, suppose I z डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। Now the magnitude of magnetic field is
म्यू नॉट आई ओवर 2r, ये हमने सॉल्व किया था बायो-सावर्ट्स लॉ से, एम्पियर्स लॉ से, कि फील्ड ड्यू टू दिस स्ट्रेट वायर एट एनी पॉइंट इट इज म्यू नॉट आई ओवर 2r। एंड अगर ये सपोज x डायरेक्शन में है तो फील्ड विल कर्ल अराउंड इट, ये हमें पता है राइट हैंड थंब रूल से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। द फील्ड विल कर्ल अराउंड दिस, तो इसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर b परपेंडिकुलर है एंड डेल क्रॉस a इज इक्वल टू b, तो उससे जो a वेक्टर होगा इट विल बी लाइक दिस इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो हमें a वेक्टर निकालना है। तो जैसे हमने सोलेनॉइड के केस में a वेक्टर निकाला था, तो सोलेनॉइड के अराउंड लूप कंसीडर की थी, तो यहाँ भी हम एक पाथ लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा पाथ? क्योंकि हमने लगाना है ये वाला मेथड, स्टोक्स थ्योरम का यूज करके हम a वेक्टर निकाल रहे हैं, तो उसमें हमें चाहिए लाइन इंटेग्रल ऑफ a। किसी वेक्टर का लाइन इंटेग्रल निकालना है तो कोई पाथ तो एज्यूम करना ही पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एक पाथ ले लेते हैं। ये पाथ ले लिया, कंडक्टर से सपोज a डिस्टेंस पे है और इन्फिनिटी तक जाता है आगे। इन्फिनिटी पे हम a वेक्टर की वैल्यू ले लेते हैं 0 एंड दिस पाथ इज क्लॉकवाइज। पाथ क्लॉकवाइज है तो थंब किधर जा रहा है? इनवर्ड जा रहा है ना, तो इट मींस जो a वेक्टर होगा इट विल बी इनवर्ड एंड दिस पाथ इज एट अ डिस्टेंस a, लेंथ ऑफ दिस पाथ से l, ये ना, एंड I is the current, so B will be mu naught I over 2r. Now हम इस पाथ में कोई थिकनेस एज्यूम कर लेते हैं ds और से dr थिकनेस एज्यूम कर ली, तो सेम चीज अप्लाई करेंगे। लाइन इंटेग्रल ऑफ a इट विल बी इक्वल टू b डॉट ds, राइट? So we can write it a into l and b is we know mu naught I over 2 into r ds. ds means area, and this area of, if we assume this small portion, small element on this path, then area will be given by dr into l, length into breadth, and integration mu naught over 2 I l integration of 1 by r into dr, and the limits of integration we will take from this point to infinity. तो ये कितने डिस्टेंस पे है पाथ? a डिस्टेंस पे, so limits will be from a to infinity. l can cancel out both sides, so mu naught I over 2 1 by r का integration natural log r from a to infinity, so it is mu naught I minus 2 natural log a. So this is the magnitude of vector potential minus mu naught I natural log a over 2, and it will be in the direction, it is upward in z direction. In vector form it can be written as